Good morning friends. In the last class, we have studied about the derivations of equation of motions. So according to our knowledge, we know that there are three equations of motions. That is v is equal to u plus at. This is the first equation. S is equal to ut plus half at square. This is the second equation, and v square is equal to u square plus 2as. It is the third equation. So in the last class, we have studied about all these three equations with their derivations of graphical method. Now, before starting the next portions, we are going to discuss the last one topic of this one chapter according to our NCERT book, that is the circular motion or uniform circular motion. After completing this one topic, we will solve some numerical based on the topic of equations of motion from our NCERT book. So now let me start our today's topic, that is uniform circular motion. Okay, now what is the circular motion or uniform circular motion? Circular motion is that when an object is moved on a circular path or track, that is called circular motion. Now, what is uniform circular motion? Uniform circular motion is when an object moves on a circular path or track with the constant speed, that is called यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ और ट्रैक पर कांस्टेंट स्पीड के साथ अगर मूविंग कंडीशन में है, in that case we will say that is the uniform circular motion. Otherwise it will be considered only circular motion. Now dear friends, in this one topic we will study that uniform circular motion is also called accelerated motion. Another one name of uniform circular motion is accelerated motion. Why uniform circular motion is called accelerated motion? Now we will study. हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन क्यों कहते हैं, इसको हम यहाँ पर स्टडी करते हैं. So the reason is that first of all we are going to recall the part of acceleration. इससे पहले in the previous class or lecture we have studied that acceleration. Acceleration means change in velocity with respect to the time, that is the acceleration. It means the rate of change in velocity with respect to the time is called acceleration. Now dear friends, we can suppose that by how many methods we can change the velocity of an object. If we can change the velocity, it means that acceleration will be performed there. So let me see. Acceleration means change in velocity. अगर एक्सीलरेशन का केस परफॉर्म करना है तो वहां पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा. तो फॉर द नॉलेज वी कैन अंडरस्टैंड दैट बाय हाउ मेनी मेथड्स वी कैन चेंज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. सो वी कैन change the velocity of an object by three methods, and they are, first is by changing magnitude of velocity. अगर हम वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज कर दें, यानी कि अमाउंट को चेंज कर दें, इन दैट केस देयर विल बी अ चेंज इन वेलोसिटी. सो दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन विल बी देयर. तो वहां पर एक्सेलरेशन का केस परफॉर्म होगा विद रिस्पेक्ट टू द टाइम. फॉर एग्जांपल, जैसे लेट मी सपोज देयर इज अ कार इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, एंड नाउ ड्राइवर एक्सेलरेट द कार विद द वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड. तो स्टार्टिंग में उस कार की जो वेलोसिटी है दैट इज द 20 मीटर पर सेकंड, लेकिन ड्राइवर ने उसको एक्सेलरेट किया, यानी कि उसकी स्पीड को इंक्रीज किया, और वो 20 मीटर पर सेकंड से किस पे कन्वर्ट कर लिया, 30 मीटर पर सेकंड पे. तो इट मींस दैट the car position is in moving, but the magnitude of the velocity is changed 20 to 30. So due to the change in the magnitude of the velocity, so we can say there is a change in the velocity with respect to the time. So it means an acceleration is performed on that situations, यानी कि वहां पर acceleration का केस परफॉर्म हो रहा है. This is the one method by which we can change the velocity. Second one method is that by changing the
डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को अगेन एंड अगेन चेंज करें तो उस केस में भी वहां पर वेलोसिटी में चेंजेस होंगे। इसका मतलब कि उस केस में वहां पर एक्सेलरेशन परफॉर्म होगा। विदाउट चेंजिंग द वेलोसिटी, इफ वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली, in that case there will be a change in velocity and the acceleration will be there. For example, अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर हम यहाँ पे बात करें कि जैसे मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है जो इस रेक्टेंगुलर पाथ के ऊपर मूविंग कंडीशन में है। लेट वी सपोज ABCD इज द रेक्टेंगुलर ट्रैक। तो जब वो कोई ऑब्जेक्ट इस रेक्टेंगुलर पाथ के ऊपर जब मूविंग कंडीशन में, यानी कि इस पे जब मूव करता है, तो इस पूरे कंप्लीट राउंड को कंप्लीट करने में वो डायरेक्शंस को कितनी बार चेंज करता है? तो वी कैन से दैट 4 टाइम्स द ऑब्जेक्ट विल चेंज इट्स डायरेक्शंस। कहां पे? एट द पॉइंट ऑफ कॉर्नर्स, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट पे जब वो पहुंचेगा तो वो अपनी डायरेक्शंस को चेंज करेगा। तो इट मींस 4 टाइम्स द ऑब्जेक्ट चेंज इट्स डायरेक्शंस विद द इफ he is traveling with the constant speed और velocity। अगर वो constant speed और velocity से traveling कर भी रहा है तो इन 4 पॉइंट से पास होते वक्त वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा। So due to the changing in the direction of object, there will be a change in velocity. This is the concept। यानी कि केवल velocity के change होने से, केवल velocity के change, यानी कि velocity के अंदर जो changes होता है वो केवल और केवल उसके मैग्नीट्यूड के चेंज होने से ही नहीं होगा। उसके मोर देन वन मेथड, उसी को हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। तो एक तो था कि हम उसके मैग्नीट्यूड को बदलें, तो जिसको हम नॉर्मली पहले से ही जानते हैं। नई जो हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिली है वो ये है कि चेंज इन द डायरेक्शन। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को लगातार और कंटिन्यूअसली चेंज करते रहे तो भी वहां पर उसकी वेलोसिटी में चेंज होगा। इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज द सर्कुलर मोशन। वी विल स्टडी अबाउट इट। नाउ द वन मोर मेथड, इट मींस वन मोर एग्जांपल वी कैन यूज। तो एक इस रेक्टेंगुलर पाथ में हमने देखा कि ऑब्जेक्ट 4 टाइम्स अपनी डायरेक्शंस को चेंज करता है। इसका मतलब यहाँ पर भी वेलोसिटी में चेंजेस हो रहे हैं। अगर हम इस रेक्टेंगुलर पाथ की जगह अगर एक हेक्सागोनल पाथ अगर हम यहाँ पे कंसीडर करें, PQRSTU, तो हम देखेंगे कि इसके अंदर जो है ऑब्जेक्ट्स कितनी बार अपनी डायरेक्शंस को चेंज करेगा, हाउ मेनी टाइम्स ऑब्जेक्ट्स चेंज इट्स डायरेक्शंस। तो we can see or we can say that only 6 times, it means 6 times objects will change its directions if he is moving with the constant velocity in the track। यानी कि यहाँ पे 6 times वो अपनी डायरेक्शंस को चेंज करेगा। It means the velocities change 6 times। तो in that case acceleration will be there। तो यहाँ पे acceleration का केस परफॉर्म होगा। Now we are going to come to the point, one more method, it means one more options we have by which we can change the velocity, and the last one method is that by changing both means changing the directions and changing the magnitude। अगर हम magnitude and direction दोनों को चेंज कर दें तो उस केस में भी वेलोसिटी के अंदर चेंजेस होंगे। हमारा जो आज का जो कंक्लूजन है, यानी कि जो हमारा जो मेन जो आज का टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशंस के केस में जो यहाँ पर एक्सीलरेशन का जो केस परफॉर्म होता है उसके पीछे जो मेन जो रीजन है दैट इज द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। सो नाउ वी आर गोइंग टू आवर मेन टॉपिक। इट मींस अगर हम यहाँ पर सर्कुलर ट्रैक की बात करें, सर्कुलर ट्रैक, तो सर्कुलर ट्रैक यानी कि एक सर्कल की अगर हम यहाँ पे बात करें, so in the case of circle or circular track there are so many points, it means always object will always change its direction with respect to the time। अगर यहाँ पर हम एक सर्कुलर ट्रैक को लेकर के स्टडी करें तो सर्कुलर ट्रैक जो होगा, इस ये जो सर्कुलर ट्रैक जो होता है, एक सर्कल होता है, सर्कल जो है सो मेनी पॉइंट्स का कलेक्शन होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर ट्रैक पे अगर मूवमेंट में होगा तो अगेन एंड अगेन कंटिन्यूअसली अपनी डायरेक्शंस को क्या करेगा, चेंज करेगा। तो चेंज इन द डायरेक्शंस, देयर विल बी चेंज इन द डायरेक्शन कंटिन्यूअसली, सो दैट्स व्हाई द एक्सेलरेशन विल बी जनरेट। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा, जबकि ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। अगर हम बात करें कि ऑब्जेक्ट इस P पॉइंट पर है, आफ्टर सम टाइम वो Q पॉइंट पर पहुंच गया और देन आफ्टर सम टाइम
R पॉइंट पर है, फिर देन आफ्टर सम टाइम S पॉइंट पर है, तो अगेन एंड अगेन द ऑब्जेक्ट चेंज इट्स डायरेक्शंस विद द कांस्टेंट स्पीड्स, बट ड्यू टू द चेंज इन द डायरेक्शंस द एक्सेलरेशन विल बी जनरेट। तो एक्सेलरेशन के जनरेट होने से यहां पर जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस परफॉर्म होता है। हम यहां पर इस बात को क्लियर कर रहे थे कि व्हाई द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन, why it is called uniform accelerated, why the uniform circular motion is called accelerated motion. So the answer is that uniform circular motion is called accelerated motion because when an object move on the circular track with the constant speeds, then it always change its directions with respect to the time. So that's why the value of acceleration is also change continuously, so it is called accelerated motion और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर ट्रैक के केस में ऑब्जेक्ट जब मूवमेंट करता है, यानी मूविंग कंडीशन को परफॉर्म करता है, मूविंग के केस को परफॉर्म करता है, तो वहां पर डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से कंटिन्यूसली उसके अंदर एक्सेलरेशन भी वहां पर चेंज होता है, ये एक्सेलरेशन का केस वहां पे परफॉर्म होता है। तो रेगुलरली एक्सेलरेशन के केस को परफॉर्म होने की वजह से, और एक्सेलरेशन किसकी वजह से जनरेट हो रहा है, ड्यू टू द चेंज इन द डायरेक्शन, सो दैट्स व्हाई दिस वन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन is called accelerated motion. One more information we can get from this topic, that is अगर हम इस पॉइंट पर बात करें, अगर ऑब्जेक्ट इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर अगर मूवमेंट में है, तो इस पॉइंट पर अगर हम वी वांट टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर हम सर्कुलर ट्रैक पर ऑब्जेक्ट की मूविंग कंडीशन की डायरेक्शन को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर चेक करना चाहते हैं, तो दैट विल बी इक्वल टू द टेंजेंट। इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की जो मोशन की जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी इक्वल टू द टेंजेंट, दिस इज लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड टेंजेंट। इन द 10th क्लास इन मैथमेटिक्स you will study about it in details. Tangents means a line which touch the circle on a point, that is called tangents. अगर हम इस वाले पॉइंट पर कैलकुलेट करना चाहें डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, ऑब्जेक्ट के मोशन की डायरेक्शन क्या होगी, तो इस तरह से हम टेंजेंट को ड्रॉ करके उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह से अलग अलग पॉइंट पर हम सर्कुलर ट्रैक पर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड फॉर द सिंपल कैटेगरी और फॉर द numerical cases we will use the very simple category formula. We know that time is equal to distance upon speed, so we can use velocity. So time t is equal to distance, this is the circular path, so we can calculate the time required to complete the one revolutions or one round. So t is equal to distance. For the one round, distance traveled by the object will be circumference, it means 2 pi r upon speed v. So this one formula we can use for the numerical based on the topic of uniform circular motion or circular motion. Dear friends, in the next class or next video we will solve numerical based on the topic of equations of motion from our NCERT book.